Hi guys, welcome back once again to my channel. In this series, we are going to talk about real numbers as you all already know. And today is the second episode of real numbers, right? So, today we are going to talk about the Euclid's division lemma. What is basically the Euclid's division lemma? इसके बारे में हम बात करेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हम करने वाले हैं. So this series is very helpful for those people who are wanting to excel the board level as well as the foundational level. दोनों तरह के students के लिए it's wonderful series. You have already gone through the first episode. Therein I have marked all the topics that we are going to cover, and specifically I've told you which topic is important for the board and which one is better for the foundation levels in detail, so you can check out the first episode as well. All right. So before directly starting the Euclid's division lemma, I would first like to tell you a little bit about the even and odd number operations. So even numbers कौन से numbers होते हैं? ऐसे numbers होते हैं जो 2 से divisible होते हैं. Odd numbers ऐसे numbers होते हैं जो 2 से divisible नहीं होते हैं. तो जब आप even numbers को add या subtract करते हो, let me take an example. Let's say 8 plus minus 2. So either I will get 10 or I'll get a 6. So the result is staying even. Is that right? In the same manner, अगर मैं odd numbers को add या subtract कर लूं, for example 7 and 5. So in this case, what is happening? In this case, you can see that odd numbers को subtract या add करने पे, I am again getting a even number as an answer. राइट, अनदर इवन नंबर आई एम गेटिंग एज एन आंसर. सो इसका मतलब है कभी भी इवन नंबर्स को, दो इवन नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लो, या दो ऑड नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लो, द रिजल्ट विल रिमेन एज एन इवन नंबर. आफ्टर दैट, व्हाट अबाउट वन इवन एंड वन ऑड? सो लेट मी जस्ट टेक वन इवन एंड अनदर ऑड नंबर. सो इन दिस केस यू विल गेट अ 9 अगर एडिशन किया तो, and subtraction किया तो you'll get a 5, which means in this case you're getting an odd number. So यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम even number को दूसरे odd number के साथ add करेंगे, the answer is going to remain odd. Alright, so now that you are done with this, now that you are ready with this, we can directly move to Euclid's division lemma, which is EDL. हम इसको EDL से refer करेंगे throughout the session. So theorem 1, the theorem says, this simple theorem of EDL says that for two positive integers a and b, अगर मैं कोई भी दो positive integers ले लूं a and b, जहां ideally a is greater than b, जहां ideally a b से बड़ा है, there always exists some unique integers q and r. तो a और b के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ए और बी के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यू और आर ऐसे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट इन सब का आपस में रिलेशनशिप कुछ ऐसा दिखेगा. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो देयर वर ओनली टू इंटीजर्स, बट नाउ वी हैव टू मोर इंटीजर्स which are in between their relationship, so it makes it very toxic, isn't it? ऑल राइट, तो ये रिलेशनशिप होता है ए और बी के बीच में. उनके बीच में दो इंटीजर्स क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ऑल्सो इट सेज कि आर जो होता है, इन दिस केस आर इज बिटवीन 0 and it goes till b. B is not included, 0 is included. That means r will be 0. R will be, since we are talking about integers, हमने कल ही integers के बारे में देखा था कि integers are nothing but the counting numbers जिसमें negative, 0 और positive ये सारे numbers आते हैं. So we are talking about positive integers only. So it will be like, it will start from 0. I understand that 0 is not a positive, neither positive nor negative, but r will have 0 because the remainders, you already know that while dividing numbers the remainder can be 0. So that's why r begins from 0,
1 2 3 like that it keeps going on until B comes in the show. But B जो है वो excluded होगा, B excluded होगा, right? B is excluded, B तक पहुंच ही नहीं पाएगा, B -1 तक जाएगा, instead B -1 तक जाएगा, राइट? बिकॉज बी इंक्लूडेड नहीं है, तो बी -1 तक जाएगा एंड देन इट विल स्टॉप। B-1 मतलब बी के पहले वाला टर्म, राइट? तो ये हो गया आपका रिमाइंडर जो है, दिस इज द बिहेवियर ऑफ रिमाइंडर, दिस इज हाउ इट विल रेंज। अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से 51। अगर मैं ए को 51 मान लूं, बी को 5 मान लो, तो हमें क्यू एन आर क्या मिलेगा? लेट्स अंडरस्टैंड। तो अगर ए 51 है और बी 5 है, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा एंड रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, राइट? 5 10s are 50 प्लस 1 will give you 51। इन द सेम मैनर अगर ए हमारा 52 है, तो हमारा क्यू अगेन इट विल रिमेन 50 एंड रिमाइंडर 2 बन जाएगा। For 53, it becomes 5 into 10 plus 3. 54 के लिए it becomes 5 into 10 plus 4. 55 के लिए it becomes 5 into 10 plus 5. लेकिन अगर आप 55 को डिवाइड कर दोगे 5 से, सो रिमाइंडर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है, राइट? I'll just take the 5 common and I can write it as 10 plus 1 plus 0. So it becomes 5 into 11 plus 0. Is that correct? अब आगे चलते हैं 56 पे। 5 into 11 plus 1, right? 55 plus 1 56. 5 into 11 plus 2 57. 5 into 11 plus 3 58. 5 into 11 plus 4 59, and then it will be like 5 into 11 की जगह पे इस बार हो जाएगा 5 into 12, which will give us 60, right? Which will simply give us 60. So यहाँ से what can you observe? यहाँ से you can observe कि आपका जो रिमाइंडर R है वो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 ऐसे रेंज कर रहा है। इस केस में आपका रिमाइंडर कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4, that's it, and it stops, right? So this is why we say कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर बी नॉट इंक्लूडेड तक जाएगा, उसके बीच के जितने भी इंटीजर्स होंगे इंक्लूडेड 0, okay, including the 0, they will all function here, alright? तो ये होता है इसका सिंपल मीनिंग। अब ये हमें डिविजन रूल से पता चला, right? This whole thing we got to understand because of the division rule. So this is where we get the relationship that A equal to BQ plus R is nothing but the dividend. A हमारा क्या बन जाता है अब? A हमारा बन जाता है डिविडेंड, B हमारा बन जाता है डिवाइजर, Q हमारा बन जाता है क्वोशिएंट, और R हमारा क्या बन जाता है? रिमाइंडर। गॉट इट? सो ये रिलेशनशिप हमें किससे बताई है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने बताई है। ईडीएल से हमें ये डिवीजन का रूल समझ में आया है कि डिवीजन को किसी भी दो नंबर्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप अकर होगा, अगर ए बड़ा नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर हो जाएगा, जिसे हम ऐसे भी कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर प्लस इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, एंड जो रिमाइंडर होगा वो 0 से B-1 तक जाएगा, राइट? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 0 से 0 इंक्लूड करते हुए B तक जाएगा, B नॉट इंक्लूडेड। आई होप यू अंडरस्टैंड ईडीएल। सो अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, show that every positive even integer is of the form 2m।
अब हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी थी नंबर सिस्टम में कि इवन नंबर्स को हम 2n या 2m ऐसे डिनोट करते हैं एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2m प्लस 1 के फॉर्म में डिनोट करते हैं, राइट, जहां पर m कोई इंटीजर होगा, राइट, लेट्स से 0 1 2 3 व्हाटएवर। सो इसको अब हमें फाइनली प्रूफ करना है। आई टोल्ड यू गाइस दैट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस आउट, राइट? सो लेट्स do this. Finally, we have got the time. It is the time now, and now we are going to prove how this is possible and why we say that with the help of EDL. So, according to EDL के according, if A and B are two positive integers where you can say A is greater than B, then there exists unique integers Q and R such that they satisfy the relation. Which relation? A is equal to BQ plus R. आपको ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा इन योर बोर्ड्स ऑल्सो। ये थ्योरी आप मिस नहीं कर सकते। जब भी ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंप्लीट थ्योरी लिखो। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू द ईडीएल में हमें पता चला कि इफ ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें ए हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ये मिलकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सब मिलकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वेयर वेयर R ranges between 0 and goes till B, right? This is what EDL tells us. अब EDL का हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अभी सेकेंड चीज आपको B फाइंड आउट करना होता है, आपको B फाइनलाइज करना होता है, तो आपके क्वेश्चन में ही आपको B मिल जाएगा। Here, this is of the form BQ, this is of the form BQ plus 1. Is that right? This is of the form BQ and this is of the form BQ plus 1. So यहीं से you can say that B is equal to 2. So अब आप क्या करोगे, पहली स्टेप आपकी हो गई EDL. फर्स्ट स्टेप वाज EDL, EDL के बारे में बात करेंगे। अब सेकेंड स्टेप आएगा assumption. सेकेंड स्टेप इज अबाउट assumption. अब मैं क्या करूंगी, I will assume. Let us assume, let me assume n is an integer, n is a positive integer. It's important to mention that positive integer which when divided by who, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से, बिकॉज हमने b ऑलरेडी फाइनलाइज कर दिया है 2 से, तो मैं मान रही हूँ कि n एक नंबर है जिसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है, which when divided by 2 satisfies the condition, कौन सी कंडीशन, n इक्वल्स टू 2q प्लस r, वेयर r क्या हो जाएगा अब इस बार, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, बिकॉज वी हैव फाइनलाइज द वैल्यू ऑफ b एज 2 दिस टाइम, करेक्ट? सो यहाँ से ये पता चल गया, अभी हमने ये तो डिसाइड कर दिया। अब आता है थर्ड स्टेप विच इज अबाउट केसेस। अब आप केस बनाना स्टार्ट कर दो। सो केस नंबर 1, अब यहाँ पे r की क्या क्या वैल्यूज आ गई, एक बार 0 आ गई, एक बार 1 आ गई, बस 2 केसेस बनेंगे। जब r 0 होगा तो n क्या आ जाएगा, 2q प्लस 0 विच इज नथिंग बट 2q, राइट, 2q के बराबर। सो यहाँ से अब 2q क्या है, अब 2q क्या है, here
2q is an even number. क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 2q is an even number. ओके, 2q even number है, ठीक है. केस 2, बिकॉज 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन नंबर है. सेकेंड केस में r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो अब n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा, राइट. अब 2q प्लस 1, अब आप खुद बताओ, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ी थी, इवन नंबर 2q is an even number and it is being added with another odd number. तो जब even and odd add होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, हमेशा odd नंबर होता है. सो क्लियरली यहाँ पर ये नंबर odd होगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. Here clearly 2q plus 1 is an odd number, राइट. यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 2q plus 1 क्या है, ऑड नंबर है. हेंस अब फाइनल स्टेप आपकी है, हेंस प्रूव. फाइनल स्टेप यू हैव टू राइट हेंस प्रूव स्टेटमेंट. देयरफॉर, अब यहाँ पर जो ऊपर स्टेटमेंट है वो पूरी चिपका दो. देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, every positive integer, every positive even integer is of the form 2m, and every positive odd integer is of the form 2m plus 1 for some integer m, right. अब यहाँ पर मैं 2q को ही मैं 2m लिख सकती हूँ, where m is equal to q, right. अब यहीं पर मैं 2q अगेन सिंपली इसको 2q plus 1 की जगह पर I can write it as 2m plus 1, where again m is equal to q, right. एक ही बात हो गई. तो यहाँ से फाइनली वी हैव प्रूव्ड कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो 2m के फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 2m plus 1 के फॉर्म में होगा. हेंस प्रूव. सो दिस इज व्हाई अब ये जो रिजल्ट है, इसका जो प्रूफ है वो ज्यादातर हमें काम नहीं आता है. लाइक in 10th standard you learn it, but you implement this during your 11th and 12th. 11th and 12th में you understand कि कभी भी आपको इवन नंबर अज्यूम करना हो तो आप उसे 2n ऐसे अज्यूम करते हो. अगर ऑड नंबर अज्यूम करना होता है तो 2m plus 1 ऐसे अज्यूम करते हो. सो द रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर ग्रेड्स. इस स्टैंडर्ड में 10th में यू शुड नो द प्रूफ, लाइक व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, व्हाई इज दिस पॉसिबल. आई होप यू अंडरस्टूड. सो दिस इज द सिंपल स्टेप. अब इसी पे एक और एग्जांपल करते हैं. Prove that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 or 5q plus 3 for any integer q. अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे एंड यू शुड नो कि आंसर कैसे लिखना है. विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल you can form the statements and you have to write the answer properly for board examination. If you want to score full out of full on these questions, the theory equally matters. Okay, so make sure you write the entire steps properly. So सबसे पहली EDL step आपको पूरी लिखनी है. Write on your own. बिकॉज जितने बार आप लिखोगे उतने बार वो याद हो जाएगी. अदरवाइज इफ यू कीप स्किपिंग इट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट इट इवन द एग्जाम. सो कीप अ हैबिट ऑफ इट, लर्न द स्टेप्स, लर्न द थ्योरम. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इट, इट्स सुपर इजी वंस यू अंडरस्टूड. सो ईडीएल की पूरी स्टेप लिखते हैं. अब क्या बोला है, प्रूव दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ पर हमें
सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर के बारे में नहीं, हमें उसके स्क्वायर के बारे में पूछा है। उसके स्क्वायर का फॉर्म हमें बोला है 5q+2 या 5q+3 नहीं हो सकता है, ये प्रूफ करो। तो इससे ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, चिक चिक के आपको बता रहा है कि कौन बी है, कौन क्यू है, कौन आर है। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा? बी आ गया 5। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि बी क्या ले। बी क्वेश्चन में ही हमेशा होगा, कोशिश करना है कि ऐसा बी लो जो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर हम ले सकते हैं, दैट्स इट। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, जो पॉसिबल है वो हम लेंगे। यहाँ पर 5 डायरेक्टली हमें दिख रहा है, 5 है तो विल टेक 5। अगर यहाँ 10 होता तो पॉसिबल चांसेस होते कि हम फिर भी 5 लें। ओके, या 25 होता तो डेफिनेटली हम 5 लेते, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बी आ गया हमारा 5। अब हमारी सेकेंड स्टेप क्या है? अजम्पशन। अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि n इज अ नंबर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट, which when divided by 5 gives 5q plus r, where अब r कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर 5 तक जाएगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट, इतना ही जाएगा। व्हाट इज दिस थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज सिंपली केसेस। अब केस बना दो। पहला केस, जब r इक्वल टू 0 होगा, तो जब r इक्वल टू 0 होगा n विल बिकम 5q plus 0, which is 5q, right? That's it. केस 2। ओके, अब हमें यहाँ पर, ऑलराइट, पहले केस 2 देख लेते हैं। तो केस 2 में r बोलता है 1, है ना? r क्या हो जाएगा इस बार? 1 हो जाएगा। तो n बन जाएगा 5q plus 1। केस 3, इस बार r 2 है तो n becomes 5q plus 2। केस 4, when r is equal to 3, तो जब r is equal to 3 हो जाएगा तो n will become 5q plus 3। एंड लास्ट केस में r will become 4, so n becomes 5q plus 4। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। n अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हमें n स्क्वायर के बारे में पूछा है, n स्क्वायर का बिहेवियर बताओ। सो फर्स्ट केस में n स्क्वायर का बिहेवियर देख लेते हैं। इन द फर्स्ट केस आई विल सिंपली स्क्वायर बोथ द साइड्स, सो इट बिकम्स 5q का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 25q स्क्वायर। अब यहाँ से मैं, अब मुझे क्वेश्चन में सीधा बोला है 5q के टर्म्स में बताना है ना? क्वेश्चन में 5q के टर्म्स में बताना है, तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेती हूँ एंड दिस बिकम 5q, राइट? सो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 5m, वेयर m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। जो भी मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ सब कुछ लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जो जो चीजें मैंने थ्योरी में नहीं लिखी है, आपको ऑन योर ओन यू हैव टू राइट। अजम्पशन भी यू हैव टू राइट इन वर्ड्स, ओके? एवरीथिंग हैज टू बी पुट इन वर्ड्स, ऑलराइट? अब सेकंड केस देख लेते हैं। जब r 1 है, अब यहाँ पे n स्क्वायर कर दो, सो 5q plus 1 का होल स्क्वायर बिकम्स 25q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10q। अब यहाँ से 5 वाली टर्म्स में कॉमन ले लेती हूँ, 5q स्क्वायर प्लस 2 2q and 1 in common, so it becomes 5m plus 1, where m is equal to 5q स्क्वायर प्लस 2q। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट नेग्लेक्ट दिस। तो यहाँ से 5m plus 1 के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे n स्क्वायर कर देते हैं थर्ड केस में, तो 5q plus 2 का होल स्क्वायर गिव्स यू 25q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20q। दिस टाइम अगेन 5 कॉमन ले लेंगे, 5q स्क्वायर प्लस 4q एंड 4 बाहर ही रहेगा बिकॉज 4 से कुछ कॉमन तो आने से रहा। सो नाउ दिस बिकम्स 5m plus 4 के फॉर्म में,
where m is nothing but 5q square plus 4q. अब थर्ड, जब r 3 होगा तब n स्क्वायर कर देते हैं, 5q plus 3 का होल स्क्वायर, so it becomes 25q square plus 9 plus 2 3s are 6, 6 5s are 30, अगेन 5 कॉमन ले लेंगे तो 5q स्क्वायर प्लस 6q, अब 9, अब क्या मैं 9 को सिंपली 5 प्लस 4 ऐसे लिख सकती हूँ? राइट, लिख सकती हूँ, है ना? सो दिस इज नथिंग बट 5 प्लस 4। तो क्या यहाँ से 5 भी कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे। अब अगर 5 को हम कॉमन ले लेंगे, सो व्हाट दिस विल बिकम? दिस विल बिकम प्लस 1 एंड बाहर आ जाएगा आपका प्लस 4। तो अगेन दिस बिकम्स 5m plus 4 where m is equal to 5q square plus 6q plus 1, करेक्ट? लास्ट केस, अब इसमें n स्क्वायर करेंगे तो 5q plus 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, which means 25q square plus 16 plus 2 4s are 8 and this becomes 40q. अगेन 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 15 plus 1 ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? बिल्कुल। तो दिस बिकम्स 5 times 5q square प्लस ये 40 से 8q कॉमन आ जाएगा, प्लस 15 से 3 कॉमन आ जाएगा and this one will remain outside. So it becomes 5m plus 1 where m is equal to 5q square plus 8q plus 3. So now in all the cases you can see कि स्क्वायर करने के बाद 5m plus 1 के फॉर्म में है, 5m plus 2 4 के फॉर्म में है, 5m plus 4 के फॉर्म में है, 5m plus 1 के फॉर्म में है और 5m के फॉर्म में है, राइट? क्या क्या फॉर्म्स पॉसिबल थे? सिंपल था, r अगर 0 1 2 3 4 है तो क्या क्या पॉसिबल थे? 5m पॉसिबल था, 5m plus 1 पॉसिबल था, 5m plus 2 पॉसिबल था, 5m plus 3 पॉसिबल था और 5m plus 4 पॉसिबल था। ये सारे फॉर्म्स पॉसिबल थे। स्क्वायर के लिए भी यही पॉसिबल थे और अगर स्क्वायर नहीं भी करो, सिंपली n रखो, तो उस केस में भी यही 5 पॉसिबल थे। तो नाउ यू कैन सी कि इनमें से सिर्फ ये फॉर्म एक्सेप्टेड है, ये फॉर्म एक्सेप्टेड है और ये फॉर्म एक्सेप्टेड है। 5m plus 2 नहीं मिला, 5m plus ओके 3 is not accepted, 4 is accepted, my bad. So 5m plus 3 भी नहीं मिला। So hence prove simple। अब लास्ट स्टेटमेंट होगी आपकी therefore अब जो क्वेश्चन में लिखा है वो एज इट इज हम चिपका देंगे। The square of any positive integer cannot be, therefore the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 and 5q plus 3, hence proved. That's it. Understood? इसीलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 5q plus 2 5q plus 3 के फॉर्म में नहीं हो सकता। That's it. Easy peasy. अब इसी में एक और सवाल देखते हैं। अब इस टाइम हमें बोला है कि इफ x एंड y बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, x और y जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, अब हमने जो पहला एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था कि ऑड नंबर्स कैसे लिए जाते हैं, इवन नंबर्स को कैसे जनरेटली यूज करना है, राइट? सो यहाँ पर x भी ऑड है, y भी ऑड है,
तो क्या मैं x को 2q 1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ एंड y को 2q2+1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना? तो लेट मी अज्यूम x is going to be 2q+1 क्योंकि वो एक ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इवन नहीं है। अगर इवन होता तो हम 2q लिख लेते। अब y को मैं 2q2 कोई दूसरा क्वेश्चन के साथ +1 अब मैं लिख लेती हूँ, राइट? आपको कंप्लीटली थ्योरी के साथ लिखना होगा, थ्योरी लिखना आना चाहिए इन 10th ग्रेड। ओके, तो थ्योरी में क्या लिखोगे? ईडीएल लिखोगे, सिंपल। थ्योरी में पहले तो ईडीएल पूरा थ्योरम अच्छे से लिखना है। सेकंड आपको एक्स एंड वाई assumption लिखना है। Let us assume x is an positive integer, odd positive integer, y is odd positive integer. Actually assumption लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो positive integer है, it is given. So it is given that x and y are odd positive integer, so let x be 2q1 plus 1 and let y be 2q2 plus 1. Simple. तो x इतना है, y इतना है। अब हमें क्या बोला है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में पूछा है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 2q+1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स 2q2+1 का होल स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा? 4q1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q1 प्लस 4q2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q2। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, 4 वाली टर्म्स कॉमन ले लेती हूँ, तो इट बिकम्स q1 स्क्वायर प्लस q1 प्लस q2 स्क्वायर प्लस q2 एंड लास्ट में 1 एंड 1 बच गया जो ऐड होके 2 बन जाएगा। सो इट बिकम्स 4m plus 2 where m is equal to q1 square plus q1 plus q2 square plus q2। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर जो हमने इवन एंड ऑड नंबर्स के ऑपरेशन देखे थे वो काम आएंगे, राइट? जो हमने स्टार्टिंग में इवन ऑड के ऑपरेशंस देखे थे, इवन टू इवन, ऑड टू ऑड, वो इस क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ यू कैन सी 4m means again 2 से divisible, this is an even number, 2 is again even number, whenever we add two even numbers the result is always even number. This means what does this mean? Here 4m plus 2 both are divisible. Actually 4m comma 2 both are divisible by 2, दोनों ही 2 से divisible है, so their sum is also even, divisible by 2, therefore the result is even, है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि 4m plus 2 जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो रिजल्ट आया है 4m plus 2 इट इज इवन वैल्यू। बट अब नाउ यू कैन सी 4m plus 2 में 4m वाली क्वांटिटी ये तो डिविजिबल है बाय 4, ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं, दिस 2 इज लाइक अ रिमाइंडर। अगर इस पूरी वैल्यू में यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया है वो आया है 4m plus 2 विच इज नथिंग बट इट्स लाइक 4q plus r का फॉर्म। तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल कब होता है? जब r 0 होता है। A number is divisible by another number when r is equal to 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो वो नंबर डिविजिबल होगा, है ना? लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है but this is not divisible by 4 since 4q plus r में r 0 नहीं है, r 2 है,
तो that is why this is not divisible by 4. Hence proved. अब इस सवाल को थ्योरेटिकली सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा. ऑल द स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. अब इसे भी हम ईडीएल की मदद से ही सॉल्व करने वाले हैं. अब यहाँ पर तुम्हें बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहीं से डायरेक्टली पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2q plus 1, 2q plus 1 बोलते मत बैठ जाना. That is not correct. This will be illegal. आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है. क्वेश्चन को देखकर आपको पहले बी डिसाइड करना है. तो बी कौन है यहाँ? Clearly we can see B is going to be 6. So the number will look like this. So the number will look like this, right? Where R is going to vary between 0 to 6. तो R की वैल्यूज क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसका मतलब है आपका नंबर कुछ ऐसा दिखेगा. 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 एंड 6q plus 5. इस तरीके से पॉसिबल वैल्यूज होगी आपके इंटीजर की. अब हमें बोला है कि ऑड इंटीजर के बारे में बताओ. कोई ऑड इंटीजर इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा क्या, ये हमें बताना है. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड. अब इसको थ्योरेटिकली कैसे करेंगे? सबसे पहले ईडीएल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ईडीएल लिख देंगे. अब ईडीएल लिखने के बाद अब हम अजम्पशन लिखेंगे. लेट एन बी, आप ए भी मान सकते हो, आप एन मान सकते हो, आपको जो मानना है आप मान सकते हो. अजम्पशन, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर. मैं मान लेती हूँ कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है which is divided by 6, which when divided by 6 satisfies, instead of gives I'll write satisfies the condition n is equal to 6q plus r, where r will range from 0 to 6. अब थर्ड स्टेप क्या होगी? सिंपल केसेस बनाओ. केस नंबर 1, पहला केस, जब r 0 होगा तो n क्या हो जाएगा? 6q हो जाएगा. अब 6q 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है ना? 6q 2 से डिविजिबल है, राइट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 times 3q. तो यहाँ से डिविजिबल बाय 2. यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2, तो इट इज इवन नंबर. तो मतलब जब 6q के फॉर्म में होगा तो इट इज एन इवन नंबर. 6q के फॉर्म में होगा तो इवन दे रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. जब r1 होगा, जब r1 होगा तो n क्या आ जाएगा? 6q plus 1. अब 6q तो हमने अभी देखा कि वो इवन है. तो अब आप मुझे बताओ, जब इवन प्लस ऑड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? हमेशा ऑड होता है, राइट? तो यहाँ से 6q plus 1 जो आएगा वो कैसा आएगा? ऑड आएगा. तो अगर ऑड आएगा तो जी नहीं, इस फॉर्म में तो नहीं हो सकता. इवन तो नहीं हो सकता, ऑड होगा. ओके, हमें क्वेश्चन में ऑड के बारे में पूछा है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ऑड के बारे में पूछा है. राइट रॉन्ग करने की हमें जरूरत नहीं है. थर्ड केस, अब थर्ड केस में जब R2 होगा तो n क्या हो जाएगा? 6q plus 2 बन जाएगा. अब 6q भी इवन है, राइट? 6q अगेन इवन प्लस 2 भी इवन है. रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन. तो अब क्या आएगा आपको आंसर? इवन आएगा. नेक्स्ट केस, जब R 3 है तो n क्या हो जाएगा? 6q plus 3. अगेन
Now this is even plus odd. Even plus odd always gives you odd. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऑड वैल्यू मिलेगी. आपको थियोरेटिकली लिखना पड़ेगा. हियर 2q is divisible by 2 or 2q is an even number, that is why n equal to 6q. And sorry, आपको लिखना पड़ेगा here 6q is divisible by 2, therefore n equal to 6q is even. सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड केस में आपको लिखना पड़ेगा कि n इक्वल टू 6q प्लस 1. यहाँ पर 6q इज डिविजिबल बाय 2 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. देयरफॉर n इक्वल टू 6q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट केस 6q is divisible by 2, 2 is divisible by 2, therefore 6q plus 2 is divisible by 2. Next case 6q plus 3 is not divisible. क्यों? Because 6q तो divisible है लेकिन 3 divisible नहीं है, इसलिए overall पूरा number not divisible by 2, therefore it is odd. जब भी कोई number not divisible by 2 होता है it is always odd. अब आ जाता है रिमाइंडर 4. तो ये क्या बन जाएगा? 6q plus 4. अब again this is even and this is also even, result is even. So you will write, since 6q is divisible by 2, 4 is also divisible by 2, therefore 6q plus 4 is divisible by 2. Last case r equal to 5. तो अब यहाँ पर 6q plus 5. 6q कैसा है? Even है. 5 कैसा है? Odd है. Result is always an odd number. Okay? So here you can see कि जब भी ऑड वैल्यू आ रही है तो हमारा n कैसा है? 6q प्लस 1 के फॉर्म में है, 6q प्लस 3 के फॉर्म में है, 6q प्लस 5 के फॉर्म में है. Hence proved. अब लास्ट स्टेटमेंट होगी आपकी hence proved. Therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Hence proved, where q is some integer and then you write hence prove. That's it. बड़ा ही सिंपल सा सवाल है from NCERT. Let's move to the next question. Now this question you're going to check your aura. इस question में you're going to verify your aura. That means you're going to solve on your own. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Again, it is a question from NCERT. So you need to make sure कि आप इस question को properly theoretically solve करो. Okay? हिंट भी दिया है. हम क्या मानेंगे? x को मान लेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर. आप किसी भी वेरिएबल को मान लो, n, m, x, y, whatever feels good to you. a को भी मान सकते हो. तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमें चिक चिक कर b की वैल्यू समझ में आ रही है, राइट? चिक चिक कर b की वैल्यू पता चल रही है. b is equal to 3. So now what you are going to do, since b is equal to 3, तो आप EDL लिखोगे, करेक्ट? सबसे पहले थियोरेटिकली EDL लिखोगे, सेकंड अजम्पशन लिखोगे. अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपका जो नंबर होगा, लेट्स से x नॉट a, सिंस हिंट में x दिया है, so the number x will be nothing but it will be equal to 3q plus r, and r will vary from 0 to 3. That means r is equal to 0, 1, 2 and yes, that's it. It will not be equal to 3. राइट? सो सारे चीजों के लिए, सारे आर्स के लिए अब आप क्या करोगे? केसेस बनाओगे. अब आप ध्यान रखना कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ईडीएल बताना है फॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो एक्स नहीं पूछा है, एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है. तो पहले एक्स इक्वल टू, यहाँ से केसेस बना लो, फिर उनकी स्क्वेयरिंग करो एंड देन 3 कॉमन लेके इस फॉर्म में लेकर आ जाओ. इस फॉर्म में लाने के बाद आपको खुद रिजल्ट दिख जाएगा, कहाँ कहाँ 3m है, कहाँ कहाँ 3m plus 1 है.
That's it. Okay. So this is going to be an aura check for you all. Let's move to the next example. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Again, NCERT question, very easy question. So, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, इस बार हमें क्यूब के बारे में बात करने को बोला है. तो अगर मैं नंबर n अज्यूम कर रही हूँ तो मुझे n के बजाय n क्यूब के बारे में पूछा है. It is a positive integer of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8. अब यहाँ से क्वेश्चन में चीख चीख के पता चल रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब b को 9 मत मानो. क्यों b को 9 मानोगे? आपका कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 9 का क्यूब निकालते बैठ जाओगे. सो इंस्टेड आप b को 3 मान लो, बिकॉज वंस अगेन 9 और 3, 9 डिविजिबल है ऑलरेडी 3 से, राइट. और 3 का अगर मैं क्यूब कर दूंगी, अल्टीमेटली 3 का क्यूब होने वाला है, बिकॉज n का क्यूब होने वाला है. तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, विच इज डिविजिबल बाय 9, राइट. सो आपको कोशिश करनी है आप b की वैल्यू ऐसी छोटी वैल्यू ले सको जिसमें कैलकुलेशन भी आसान हो एंड आपकी नीड भी हो जाए, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो भी आप सेटिस्फाई कर सको. सो यहाँ से अब स्टेप लिखते हैं. ईडीएल पूरा थ्योरम लिखना, राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू नीड टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स. पूरा ईडीएल लिखेंगे. सेकंड, अजम्पशन. अब अज्यूम कर लेते हैं, अब हम अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर, पॉजिटिव नंबर n which when divided by 3 satisfy this 3q plus r. तो r कहां से कहां तक हो गया? 0 से लेकर 3 तक हो गया. तो r की एक बार 0 1 2, दैट्स इट. अगर आप ये 9q के साथ करने जाते तो आपके पास बहुत सारे केसेस बन जाते, राइट. r is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो इतने सारे केसेस आपको सॉल्व करने पड़ते, बट द रिजल्ट वुड बी द सेम. दैट इज व्हाई हमने हमारा कैलकुलेशन ईज करने के लिए छोटा नंबर यूज किया. सो n is equal to 3q plus r आ गया. अब थर्ड सिनेरियो, केस बनाओ. तो पहला केस क्या हो जाएगा? पहला केस हो जाएगा r इक्वल टू 0. सो n क्या हो जाएगा? 3q. अब हमें n नहीं पूछा है, हमें पूछा है n क्यूब. तो n का क्यूब कर दो, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा. क्यूबिंग बोथ द साइड्स. सो ये आ गया 27 q का क्यूब. अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, सिंस मुझे 9 के टर्म्स में बताना है, मुझे किसके टर्म्स में बताना है? 9 के टर्म्स में बताना है. तो मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ. So this becomes 3q का cube. So now this becomes 9m where m is equal to 3q का cube, right? Okay. अब आते हैं सेकेंड केस पे. अब r equal to 1. In this case r is equal to 1. अब n क्यूब के बारे में पूछा है, n क्यूब कर दो 3q plus 1 का होल क्यूब. अब आई होप आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता हो. a plus b का होल क्यूब इज AQ plus BQ plus 3AB into A plus B. ये अगर आपको नहीं पता है तो अभी से लर्न कर लो. फॉर फाउंडेशन एज वेल एज 10th बोर्ड, इट्स सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो दिस फॉर्मूलाज. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ से क्या आ जाता है? 3Q का होल क्यूब, दैट मीन्स 27. Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब विल बी 1 ओनली, प्लस 3 टाइम्स 3Q into 1 whole multiplied by 3q plus 1, right? So it becomes 27 qq plus 1. इस पूरे को ओपन कर देते हैं. So this will be, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी? 9q. 9q into 3q plus 1 will become 3 9s are 27 q square plus 9q, right? तो ये पूरी टर्म ये बन जाएगी. So I will directly write it. This will be 27q square plus 9q. अब 9 कॉमन ले लेते हैं. 3qq अब इस टर्म को ले लेते हैं, प्लस 3q स्क्वायर
प्लस क्यू एंड 1 बाहर रह जाएगा. सो इट बिकम्स 9m plus 1 where this whole thing is going to be m. मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ लेकिन आपको थियोरेटिकली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप थियोरेटिकली लिखोगे तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे. ये क्वेश्चंस 3 मार्क 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड में, सो इट्स इम्पोर्टेंट. एक्चुअली बोर्ड में इतना तो नहीं आता है, बट अगर चांसेस हुए 3-4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. इन योर टेस्ट डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो 9m+1 हो गया. थर्ड केस, इस बार r इज इक्वल टू 2, तो n बिकम्स 3q प्लस 2. अब n का क्यूब कर देते हैं, सो 3q प्लस 2 का होल क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b वाला फॉर्मूला. सो दिस बिकम्स 27, q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बिकम्स 8 प्लस 3 टाइम्स 3q इंटू 2 होल 3q प्लस 2, राइट. सो ये बन जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस दिस होल थिंग विल बिकम 2 3s are 9 into 2 is 18q whole divided by 3q plus 2, right? Okay. So basically मुझे 9 कॉमन ही लेना है ना, इसमें से 9 कॉमन ही लेना है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट लीव इट लाइक दिस. थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा. ऑल राइट. और कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो. ओके. और कुछ तो हम कॉमन नहीं ले सकते. अब 9 को कॉमन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब. अब 8 तो कॉमन नहीं आएगा, 8 को साइड में लिख देंगे. यहाँ से 18q से 2q कॉमन आ गया, 2q कॉमन आ गया और ये पूरी टर्म ऐसी ही मैं अंदर लिख देती हूँ, राइट. तो ये क्या बन जाएगा 9m plus 8 where this whole thing where this whole thing is nothing but m, right. सो अब यहाँ से थर्ड केस विच इज द लास्ट केस, यहाँ पर 9m plus 8 आ गया. सेकेंड केस में 9m plus 1 आ गया. फर्स्ट केस में 9m आ गया. सिंपली करेक्ट. सो अब लास्ट आपका स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप आपका है हेंस प्रूव लिखना. देयरफॉर कॉमा हेंस प्रूव. देयरफॉर अब आप लास्ट स्टेप क्या लिखोगे? देयरफॉर the cube of any positive integer, therefore the cube of any positive integer is of the form 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8, right. या तो 9m होता है या फिर 9m plus 1 होता है या फिर 9m plus 8 होता है. Hence proved. So this is how you're going to solve these kind of questions. It's very fun after you understand it. Okay. Let's quickly also understand about the Euclid's division algorithm, EDA. So Euclid's division algorithm is nothing but it is a technique. Okay. EDL is not a technique. EDL एक theorem है. It tells you what is the relation between two integers A and B. And अगर उनके बीच में कोई relationship आएगा तो वो काफी टॉक्सिक होगा क्योंकि उसमें दो integers involved which is q and r, and r जो होगा वो 0 से लेकर b तक जाएगा, right. This was EDL. अब आते हैं EDA. अब एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप HCF या फिर GCD फाइंड कर सकते हो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप फाइंड कर सकते हो. What is HCF? What is GCD? It is basically एक ऐसा नंबर जो दो नंबर्स को, जैसे A और B अगर वो दो नंबर्स है, हम अब तक A और B के बारे में ही बात कर रहे, राइट.
तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन पॉसिबल है, वो आप फाइंड कर सकते हो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे हमें ए दिया है 120, हमने क्या कहा था, ए विल बी assumptuously बिगर देन बी, राइट? मोस्ट केसेस में ए विल वी विल अज्यूम एज ग्रेटर देन बी, ऑलमोस्ट केसेस में इनफैक्ट। सो ए आपका 120 आ गया, बी आपका 45 आ गया। सो अकॉर्डिंग टू ईडीएल, ए और बी के रिलेशनशिप कैसे होंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। इसका मतलब 120 इज इक्वल टू 45 इंटू क्यू प्लस आर के बराबर आएगा, राइट? वेर आर इज फ्रॉम 0 टू 45, बट उसको फिलहाल आप मेंशन नहीं भी करोगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ से हमें क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन सिंपल लैंग्वेज हम क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इसका मतलब है मुझे सिंपली डिवीजन करना है, राइट? क्यू इज द क्वोशिएंट, आर इज द रिमाइंडर, राइट? तो 45 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट 90 एंड रिमाइंडर विल बी 3। सो दिस बिकम्स योर क्यू एंड दिस बिकम्स योर आर। अब बस इसको यहाँ पर पुट कर दो। सो इट बिकम्स 45 टाइम्स 30 प्लस रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 2। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है? दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। अब आपकी सेकेंड स्टेप होती है, आपकी सिंपल सेकेंड स्टेप होती है कि आप इन दोनों को डिवाइड करो, आपका जो क्वोशिएंट है और आपका जो डिवाइजर है। सो इस केस में अब आप 45 और 30 को डिवाइड करोगे। सो लेट्स डिवाइड 45 एंड 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम्स दिस विल बी 15। तो अब आपका क्या आ गया, 30 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आ गया 15, करेक्ट? Now let's understand Euclid's division algorithm. What is Euclid's division algorithm? So Euclid's division algorithm जो है वो एक टेक्निक है जिससे हम HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पहचान सकते हैं फॉर एनी टू गिवन नंबर्स। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इन दिस केस आपको 120 और 45 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो आपको पता है। ईडीएल क्या बोलता है? ईडीएल बोलता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट? ये सिंपल वर्ड्स है ईडीएल के। सो यहाँ क्वेश्चन में ए हो गया 120, बिगर नंबर इज ऑलवेज ए, और बी हो गया 45। सो अब इनके बीच में ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, है ना? 45 क्यू प्लस आर, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। इसकी मदद से हम इनका HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू डिवाइड 45, you have to divide 120 by 45। इसका मतलब तो वही है ना, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स, सो ये 90 हो जाएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा 30। सो 2 इज योर क्वोशिएंट एंड 30 इज योर रिमाइंडर। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? अब आपकी इक्वेशन बन गई 120 इज इक्वल टू 45 टाइम्स 2 प्लस आपका रिमाइंडर। अब इसी से आपको एक चेन बनानी पड़ती है। अब नेक्स्ट टाइम आप 45 को और 30 को डिवाइड करने वाले हो। अब इन द सेकेंड चेन आप 45 और 30 के बीच का सेम रिलेशनशिप यू विल फाइंड आउट आफ्टर डिवीजन। ओके, कर लेते हैं फाइन। सो नाउ 30 विल डिवाइड 45। सो 30 वन जा 30, ये आ गया 15। फर्दर वी कांट डिवाइड, अब क्वेश्चन आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 15। तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? 30 इंटू 1 प्लस
15। अब ये चेन आपको फिर से फॉलो करनी है जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। जब तक आपका जीरो नहीं हो जाता रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता तब तक के आप ये स्टेप फॉलो करोगे। अब यहाँ पे 30, अगेन हमने क्या किया, हमारा जो क्वेश्चन था उसको रिमाइंडर के साथ फिर से नेक्स्ट चेन में डिवाइड किया और उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। सो ये तो काफी आसान है, राइट। 2 times will give us 30. Finally the remainder is 0. Question was 2. So यहाँ से रिमाइंडर अब आपका 0 आ गया, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो जिस पॉइंट पर रिमाइंडर 0 होगा वो डिवाइजर आपका HCF कहलाता है। What is an HCF? It is a highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम 15 को ले या 2 को ले एचसीएफ। रिमेंबर वन थिंग, 2 आपका क्वोशंट है, 15 आपका डिवाइजर है। हमें डिवाइजर की सर्च है। एचसीएफ का मतलब हम एक ऐसे नंबर को देख रहे हैं जो 120 को भी डिवाइड करेगा और 45 को भी डिवाइड करेगा। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 120 को भी डिवाइड कर रहा है और 45 को भी डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दैट इज व्हाई हम क्या करेंगे, एचसीएफ किसको मानेंगे? हमारे डिवाइजर को मानेंगे। सो यहाँ से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ मिल जाता है। आपको दूसरा तरीका भी बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन आपको ईडीए भी आना चाहिए। ईडीए की मदद से भी एचसीएफ फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर 3 नंबर्स है और 3 नंबर्स के बीच में पूछा गया है कि इनके बीच में एचसीएफ क्या है, टेल अबाउट द एचसीएफ बिटवीन फॉर दीज 3 नंबर्स यूजिंग ईडीए। अगेन अब यहाँ पे भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। हमें पता है कि 2 नंबर्स के लिए कैसे करना होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे एंड देन जो भी आंसर आएगा उसका और थर्ड नंबर का मिलकर एचसीएफ निकालेंगे। लॉजिक समझा? पहले 2 नंबर ले लो, एक सबसे छोटा एक थोड़ा बड़ा, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। इनका जो एचसीएफ आएगा उसका थर्ड नंबर के साथ एचसीएफ ले लो। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, सेम ईडीएल लगा लेंगे, सेम ईडीएल लगा लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ईडीएल 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्यू और आर फाइंड आउट करते हैं। 420 को डिवाइड करेंगे 130 के साथ, या 3 से चला जाएगा, 3 zeros are 0, 3 threes are 9, 3 ones are 3. So this will be 30, correct? Yes. अब यहाँ से ये आपका क्वेश्चन आ गया, 30 आपका रिमाइंडर आ गया। 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 30। अब किसको लेंगे हम? यस, अब हम हमारे डिवाइजर को लेंगे और हमारे रिमाइंडर को लेंगे। रिमेंबर दिस वन थिंग। तो सेकेंड स्टेप में हम आपके डिवाइजर को लेंगे और रिमाइंडर को लेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। सो 130 को 30 से डिवाइड करोगे, सो 4 टाइम्स आ जाएगा 120। रिमाइंडर दिस टाइम विल बी 10 एंड क्वोशंट विल बी q. So this becomes 30 into quotient is 4 plus, right? अब यहाँ पे थर्ड स्टेप, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है तो वी हैव टू कीप कंटिन्यूइंग, हमें कंटिन्यू करते रहना होगा। सो दिस बिकम्स 30, 30 इज इक्वल टू, अब हमें 30 को डिवाइड करना है बाय 10। सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा फाइनली 0। सो दिस विल बी 10 times 3 plus 0. सो अभी आपका एचसीएफ कौन हो जाएगा?
HCF will be 10. किसका HCF है ये? 420 का और 130 का. अब हमें 600 और अब हमें HCF निकालना है 600 और 10 का. जो भी इसका HCF आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके, तो अब इनके बीच में भी EDL की वजह से सेम रिलेशनशिप होगी. 100 इंटू Q प्लस R, राइट? सिंपल रिलेशनशिप. तो अब डेफिनेटली ऑटोमेटिकली पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा. करेक्ट. सो दिस बिकम 600 0, रिमाइंडर आ गया 0 एंड क्वेश्चन आ गया 60. तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 60 प्लस 0. तो आप डिवाइजर को आपका HCF मानोगे. आपका डिवाइजर ही हमेशा आपका HCF कहलाएगा. ऑलराइट, आपका क्वेश्चन या रिमाइंडर नहीं, क्योंकि हम ऐसा नंबर देख रहे हैं जिससे डिवाइड हो जाए. ओके, तो दैट इज व्हाई अब 10 जो है, अब 600 और 10 का HCF भी 10 ही आया है. सो योर फाइनल आंसर, so final answer means HCF of 600, 420 and 130. इन सब का HCF कौन आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा. I hope that is clear. It's very simple. With the help of EDA आप किसी भी 3 नंबर्स का या 2 नंबर्स का इजीली HCF निकाल सकते हो. इसको theoretically लिखने की जिम्मेदारी आपकी है. So that's all for today. We are going to meet in the next episode.